Good morning, 11th class. How are you people? Hope all of you are good. So, class, we were on our chapter number 2 of geography, the origin and the evolution of Earth. Okay, so we'll be starting with this chapter. We just had a kind of general discussion on what do you think was the origin of the Earth, and do you really find it fascinating to find so many things in the sky, and what are your thought processes whenever you think about it. Okay, ये सारा था जो we just had a kind of discussion on this. Okay, now we will be studying the chapter. Now obviously जो अपना first chapter था, that was just talking about geography as a discipline, why it is important, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, and all these kind of stuff. डिटेल्स हमने ज्योग्राफी का बेस जो है क्लियर कर लिया था. नाउ इफ यू ऑल रिमेम्बर, आई टोल्ड यू कि अब इसके बाद हम पूरा इस वाली बुक में हम पढ़ेंगे अबाउट from the starting origin of earth, and then we will talk about origin कैसे हुआ, उसका evolution कैसे हुआ, evolution होने के बाद फिर finally earth के interior का कैसे formation हुआ, उसके बाद oceans और continents कैसे form हुए, minerals और rocks जो हमारे earth पे हमें मिलते हैं उनके बारे में चीजों को समझेंगे, जियोमॉर्फिक जो प्रोसेसेस होते हैं इनसाइड द अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उससे अर्थ में क्या चेंजेस आते हैं, फिर हम अर्थ के ऊपर का एटमॉस्फेयर के बारे में, सोलर रेडिएशन, वाटर, क्लाइमेट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड देन फाइनली लाइफ ऑन अर्थ एंड related to this is what we will be doing in this book, and second book में we will talk about India. So ये जो book है इसमें we will be talking completely so few of the topics will be completely very new for you. ऐसा होगा कि आपने कभी सुन ही नहीं रखा होगा उन चीजों के बारे में, because we will be studying in detail from, and we'll try to cover the most important whatever topics or phenomena related to earth, which helped in the formation of earth, और कैसे पूरा form हुआ था. ठीक है, so let us start with the very first topic, which is, you can say, origin या evolution of earth. Now to start with, हमें पता है whenever we look at the sky there are many things that come into our mind, as we discussed कि how many stars are there, आखिर stars form कैसे होते हैं, sky कितना बड़ा है, क्या उसका expanse है, how a planets form, why is sun the center of our solar system, how many galaxies are present, how many such solar systems are present, so many unquestioned answers. And actually when we look at sky there are many fascinating things that actually make us think more about this. And then sometimes whenever we are studying about earth, starting से जब हम छोटी classes से पढ़ते हैं तो हमेशा कभी ना कभी ऐसा लगता है कि आखिर फॉर्म कैसे हुआ होगा अर्थ, कितना बड़ा है अर्थ. Our small place is such a even our small place where we live is so big. So just imagine the whole country, then the continents, then the whole world, कितना बड़ा होगा. एंड देन सिर्फ अकेला अर्थ नहीं है, पूरा अपना सोलर सिस्टम है, सो मेनी प्लैनेट, सो मेनी स्टार्स, सैटेलाइट्स, और फिर ये तो सिर्फ सोलर सिस्टम है हमारा, इसके अलावा भी कितने ऐसे सिस्टम्स होंगे, व्हाट आर गैलेक्सीज, व्हाट आर कॉस्मोस, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ओके, सो फॉर अस what actually must be more fascinating कि आखिर हमारा जो अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ था. सो ऑब्वियसली जब इसके बारे में सोचा था तब बहुत सारे स्कॉलर्स ने सोचना, रिसर्च करना शुरू कर दिया था. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज स्कॉलर्स, एंड फाइनली कौन सा वाला थीसिस है या कौन सी हम बोलेंगे हाइपोथेसिस है जिसको हम ये मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, जो हमारा अर्थ जो हमारी फॉर्म हुई होगी. बहुत सारी हाइपोथेसिस जो है अलग अलग फिलोसोफर्स ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ. तो उसमें से जो जो ऐसी थी जो थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबल हुई, जो लोग फिर फाइनली बिलीव करने लगे कि हाँ ऐसा हुआ था, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट अर्लियर एंड पॉपुलर जो आर्ग्यूमेंट्स दिया गया था, इट वाज गिवन बाय जर्नल फिलोसोफर इम्यूनल कैंट.
और फिर उसके कुछ ही साल बाद अराउंड 1796 के अराउंड एक मैथमेटिशियन थे लैपलेस, उन्होंने इसको रिवाइज किया और इस पूरे हाइपोथेसिस को नाम दिया गया नेब्यूलर हाइपोथेसिस. Okay, you can see the pictures of these great scholars. Both of them were the people who did remarkable work in this nebular hypothesis. ठीक है, एक तो इम्यूनल कैंट थे एंड सेकंड अपने मैथमेटिशियन लैपलेस थे. ठीक है, नाउ आखिर इस थीसिस में था क्या वो भी देख लेते हैं. इस थीसिस के अकॉर्डिंग जो भी प्लैनेट्स हैं वो एक्चुअली में फॉर्म हुए थे आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल, जो जब सन एकदम यूथफुल एज में था, मतलब जब एकदम फॉर्म होना शुरू हुआ था, बहुत यंग था सन अकॉर्डिंग टू इट्स एज, उस टाइम पे बेसिकली स्लोली रोटेशन हो रहा था. ठीक है, सो दिस कंसिडर्स दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड मटेरियल व्हिच वाज एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन व्हिच वाज स्लोली रोटेटिंग. यानी यूथफुल सन था, उसके अराउंड जो है बहुत सारा क्लाउड ऑफ मटेरियल था. नेबुलर का बेसिकली मतलब होता है रिलेटेड टू क्लाउड. क्लाउड वैसे ऑफ डस्ट, ऑफ लॉट ऑफ मटेरियल्स, ये सारी चीजें. ठीक है, तो यही बोल रहे थे कि इट वाज अ क्लाउड ऑफ मटेरियल दैट वाज एसोसिएटेड विद यूथफुल सन, स्लोली रोटेट हो रहा था और इसी में से बाद में प्लैनेट्स बनेंगे. ठीक है, फिर इस पे और रिसर्च की गई और स्कॉलर्स ने सोचा. फिर अराउंड 1900 में वी कम अक्रॉस टू मोर स्कॉलर्स, चैम्बरलेन एंड मॉल्टन. ये जो दो हैं, इन्होंने बोला कि एक वॉन्डरिंग स्टार है. वॉन्डरिंग मतलब जो विच इज ऑलवेज ऑन अ मूव, मूव कर रहा था. एक मूविंग स्टार जो है ना वो सन की तरफ आ रहा था. इट वॉज बेसिकली अप्रोचिंग द सन, जिसके कारण क्या हुआ, एक एक्सटेंशन हो गया था of material which was then separated from the solar system, solar surface. तो यानी कि जब एक जो वंडरिंग स्टार है वो सन की तरफ आ रहा था, तो क्या हुआ कि जो सन वाला पूरा एरिया, उससे एक सिगार शेप एक्सटेंशन बाहर की तरफ एक पोर्शन निकल गया इस मटेरियल का, और फिर वो सोलर सरफेस से अलग हो गया. और जो वो स्टार मूव कर रहा था, जैसे ही वो वहां से चला गया, व्हेन बिकॉज इट वाज वॉन्डरिंग ऑब्वियसली, वो तो मूव अवे कर गया, तो जितना भी मटेरियल जो सोलर सरफेस से सेपरेट हुआ था वो अब क्या करने लग गया, सन के अराउंड रिवॉल्व करने लग गया. ओके, और फिर ये धीरे धीरे क्या हो गए, कंडेंस हो गए, कंडेंस्ड इनटू प्लैनेट्स. सी, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग कि सन पूरा एक वी हैव दिस सन which is a whole, you can say, mass, big mass of sun, and suddenly some other star was approaching towards the sun, and when this is approaching towards the sun, basically, sorry, the arrow is opposite side, we'll see. जो basically वो wandering जो star है, ये किस तरफ आया, ये हमारा आया towards the सन. इट वॉज मूविंग टूवर्ड्स दी सन. तो जब ये सन की तरफ मूव किया तो सन में से एक एक्सटेंशन निकल गया जो सेपरेट हो गया इस सोलर सरफेस से. जैसे ही वो स्टार हट गया, वहां से चला गया स्टार, उसके बाद क्या हुआ, वो जो चीजें सोलर सरफेस से सेपरेट हुई थी वो सोलर सरफेस जो बचा हुआ था उसके अराउंड क्या करने लग गई, रिवॉल्व करने लगी. ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस, सन के प्रेजेंस और उसके पूरे ग्रेविटेशन और उसके कारण इट स्टार्टेड मूविंग अराउंड, रिवॉल्विंग अराउंड द सन. और फिर विद टाइम स्लोली व्हाट हैपेंड, ये जो सारा जो मटेरियल सेपरेट हुआ था ना, ये कंडेंस हो गया एंड फाइनली इट फॉर्म्ड इनटू अ प्लैनेट. not into a planet, actually it condensed into the planets that we know now. ठीक है, तो प्लैनेट्स फॉर्म हुए हैं, अभी सिर्फ प्लैनेट्स फॉर्म हुए हैं, इनमें और कुछ अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, मतलब लाइफ वाइफ या ये सब नहीं है, ना ही एटमॉस्फेयर आया है. दैट विल कम वेरी लेटर. अब क्या हुआ, नेक्स्ट थीसिस दी हमारी सर जेम्स जीन्स, और बाद में इसी में थोड़ा सा ऐड किया सर हैरल्ड जेफरे ने. इन लोगों ने इन आर्ग्यूमेंट को क्या किया, सपोर्ट किया कि हाँ ऐसा हुआ होगा. ठीक है,
यानी we should remember the name of the scholars who are basically talking about how all these things happen. थोड़े टाइम बाद और इससे रिलेटेड लोग जो है थ्योरीज देने लग गए एंड पीपल सेड कि जो actually they people considered that there was a kind of companion to sun. तो ऐसा लगता है कि सन का कोई कंपेनियन भी था उस टाइम पे, चाहे वो वंडरिंग स्टार था या और कुछ था. दे आर सेइंग दैट देयर वाज अ कंपेनियन टू द सन जो को एग्जिस्ट करता था. एंड दैट इज व्हाई ये जो आर्गुमेंट्स हैं इनको हम बाइनरी थ्योरीज बोलते हैं. बेसिकली प्रेजेंस ऑफ टू है ना, एक सन है और एक जो कंपेनियन है सन का. ओके, सो दीज आर कॉल्ड द बाइनरी थ्योरीज. अब आगे क्या हुआ 1950 में, देन अगेन वन ऑफ द स्कॉलर ऑटो स्कीमिथ एंड कार्ल वेस्कार जो हैं जर्मनी के और ऑटो स्कीमिथ रशिया के, इन्होंने समवेयर ये जो पूरा नेबुलर हाइपोथेसिस है ना इसको फिर से रिवाइज किया और इसको और डिटेलिंग देने की कोशिश की, मतलब और चीजों को और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश की. ठीक है, एंड क्लियर इन टर्म्स की ये बताने की कोशिश की कि हाँ ये जो थीसिस है इससे रिलेटेड कैसे क्या चीज हुई थी और इसको थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश की. उन्होंने बोला कि सन जो है इट वाज बेसिकली सराउंडेड बाय सोलर नेब्यूला. ठीक है, सन के अराउंड जो है सोलर नेबुला था, पूरा क्लाउड जैसा था जिसमें ज्यादातर क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम. ठीक है, और साथ साथ में कुछ डस्ट पार्टिकल्स जैसे भी थे. ओके, यानी सन है, उसके अराउंड पूरा सन को सराउंड किया हुआ एक सोलर नेबुला ने, एक क्लाउड के एक गैस के क्लाउड ने जिसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, डस्ट है. अब ये जितने पार्टिकल्स हैं इन क्लाउड्स के बीच में, उनके बीच में कंटिन्यूअस फ्रिक्शन होता रहा. यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर द मे बी 9-10 साइंस में आपने पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन क्रिएट होती है बिटवीन इफ टू थिंग्स स्ट्राइक टुगेदर या एक कोलाइड करते हैं, तो बिकॉज इतने सारे पार्टिकल्स थे उनमें फ्रिक्शंस जैसे क्रिएट हुए और कोलिजन भी हो रहा था उनका, जिसके कारण क्या हुआ कि एक डिस्क शेप क्लाउड बन गया. डिस्क, यू नो द शेप ऑफ अ डिस्क, डिस्क के शेप का क्लाउड बन गया. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, planets were formed through the process of accretion. accretion का मतलब क्या है, coming together, joining together. अब क्या हुआ, just imagine what they are saying. they are saying कि जब ये जो इसके अराउंड के पार्टिकल्स हैं, सोलर नेबुला के जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी सन के अराउंड अगर हम देखें, if this is our sun, if suppose this is our sun और इसके अराउंड पूरा का पूरा हम देख रहे हैं ये हमारा सोलर नेबुला जो है, और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये आपस में कभी टकरा रहे हैं, कभी दे आर कोलाइडिंग, जिसके कारण ये जो है ये वाली जो शेप है इसकी थोड़ी सी किस टाइप की बन गई, डिस्क टाइप की बन गई, और समवेयर अलग अलग ये वाले जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये अलग अलग ऑर्बिट पे जैसे साइड पे हो गए. अब क्या हुआ कि ये अर्थ के अराउंड तो रिवॉल्व करने लगे, इसके साथ साथ क्या हुआ कि ये है ना एक दूसरे के पास आने लग गए एक दूसरे की ग्रेविटी के कारण, या बिकॉज ऑफ सोलर ये जो मूव कर रहे हैं, तो कुछ कुछ तो क्या है बहुत बड़े हो गए. some of them became big, ये these started becoming big and then they started basically we can see जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होना इन्होंने शुरू कर दिया था. ठीक है, so when they start revolving around, when they started revolving around the sun in these paths, ऑब्वियसली फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई, और प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होने के बाद ऑब्वियसली जो हमारा पूरा सिस्टम है वो फॉर्म हुआ. ठीक है, नाउ दिस थ्योरी दैट वी
just talked about is relating to the initial theories जो हमारी थी, ठीक है, इनिशियल थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ, इनको हम अर्ली थ्योरीज भी बोलते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द अर्ली थ्योरीज। उसके बाद और ज्यादा डेवलपमेंट हुई विद टाइम। जो बाद वाले जो हमारे साइंटिस्ट है, हिस्टोरियंस है, उन्होंने अब सोचा कि हम जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है ना, सिर्फ उसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे, हम बाकी चीजों को भी और बहुत ज्यादा समझेंगे। मतलब वी विल नॉट बेसिकली टॉक ओनली अबाउट इन टर्म्स ऑफ प्लैनेट्स या अर्थ की कैसे फॉर्म हुआ है। साइंटिस्ट लेटर पीरियड ने अब ये बोला हम पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन देखेंगे, ठीक है। आई रिपीट इट, जो अर्लियर थ्योरीज वाले थे वो थोड़ा सा अर्थ पे फोकस कर रहे थे या प्लैनेट्स पे फोकस कर रहे थे या इतना डिटेलिंग में नहीं जा रहे थे। बट अब जो हम मॉडर्न थ्योरीज पढ़ेंगे वो सिर्फ अर्थ या प्लैनेट की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं ऑफ द होल ऑफ यूनिवर्स, कि जो हमें होल ऑफ यूनिवर्स है उसके ओरिजिन, सिर्फ ओरिजिन नहीं, उसके प्रॉब्लम्स जितने भी थे रिलेटिंग टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कैसे हुआ, सारे स्टेप्स, रीजन बिहाइंड इट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, इन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम मॉडर्न थ्योरीज की बात करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल या सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी को एक्सपैंडिंग यूनिवर्स यूनिवर्सल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ओके। आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, यानी बिग बैंग थ्योरी, एंड इट हैज दिस अदर नेम आल्सो। नाम से पता चल जाएगा कुछ एक्सपेंशन से रिलेटेड है। अब इसको समझते हैं। एडविन हबल जो है 1920 में उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया था कि अर्थ जो सॉरी यूनिवर्स जो है हमारा एक्सपैंड हो रहा है, स्टिल इट इज एक्सपैंडिंग, और जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से और दूर मूव करती रहेगी, बिकॉज द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। दिस इज what was being told in this theory, okay. Now to explain this theory better, they gave us few examples to understand, which we will also go through. देखो, they are saying, you also have a image in front of you on the screen, you can just have a better look at this, understand while I'm telling you. अब देखो, you need to take a balloon and mark some points on it to represent galaxies. तो आप एक बलून ले लो, उस पे जब वो इतना इन्फ्लेटेड नहीं है तो उस पे कुछ डॉट्स मार्क कर दो आप, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो, उनको सपोज करो कि वो गैलेक्सीज है, एंड देन यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बलून। जो आपने पॉइंट्स मार्क किए थे बलून में, वो आपको लगेगा कि जैसे जैसे जो बैलून इन्फ्लेट हो रहा है ना, वैसे वैसे वो जो आपने उस पे सर्कल्स, जो डॉट्स आपने मार्क किए थे, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ओके। जो पॉइंट्स आपने मार्क किए थे वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। व्हेन यू आर इन्फ्लेटिंग द बलून, यू कैन क्लियरली सी द इमेज। यहाँ पे आप इन्फ्लेट करे हो, डॉट्स थोड़े दूर गए, फिर और दूर गए, यानी सेम, आपने तो सेम डॉट्स मार्क किए थे, बट एज यू आर इन्फ्लेटिंग, एज द बलून इज एक्सपैंडिंग, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो पॉइंट्स है वो दूर जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि सिमिलरली क्या है, जो गैलेक्सीज हैं वो एक्सपैंड हो रही है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, एंड दैट इज व्हाई यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपैंडिंग, ओके। ये इन्होंने थ्योरी तो दे दी, बट we'll find a kind of confusion here. What is the confusion? We'll find that distance तो increase हो रहा है, जो points है उनके बीच में distance तो increase हो रहा है, but points भी तो expand हो रहे हैं। Today you will try it at your home, you will take a balloon, you will put small circles or small points on it and you try to inflate it, तो आप देखोगे points तो दूर हो रहे हैं, पर उन points के बीच में दोनों में difference, जितने भी points है सबके बीच में difference बढ़ रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है।
बट जो आपने डॉट्स मार्क की थी वो भी तो एक्सपैंड हो रही है। तो इसको इस थ्योरी ने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया था कि तो फिर तो वो भी जो प्लैनेट्स हैं या जितनी भी चीजें हैं वो भी तो एक्सपैंड होनी चाहिए। That is why scientists believe कि space between the galaxies is increasing, but galaxies जो है वो भी तो expand हो रही है। So ये जो balloon का example समझा के इन्होंने they wanted us to understand this theory, वो partially ही correct है, it is not totally correct, it is half correct because obviously एक चीज को explain किया है पर दूसरी चीज जो है उसको explain नहीं किया है। Okay. So now because we have just tried to understand it through one simple example, अब इसको टेक्निकल टर्म्स में देखते हैं कि कैसे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया था। तो बिग बैंग थ्योरी जो है विच वाज टोल्ड टू अस बाय द ग्रेट स्कॉलर्स, इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है दिस कंसिडर्स द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। सबसे पहली चीज ये बोलते हैं कि जो पूरा यूनिवर्स है ना वो सिर्फ एक टाइनी बॉल था, सिंगुलर एटम, बट उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। ओके, सॉरी, वॉल्यूम जो है दैट वाज आल्सो वेरी स्मॉल, इनफाइनाइट टेम्परेचर था और इनफाइनाइट डेंसिटी थी। That means in the beginning all the matter forming universe existed in one place in the form of a tiny ball, singular atom, जिसका वॉल्यूम भी स्मॉल था बट उसका जो टेम्परेचर था वो इनफाइनाइट एंड डेंसिटी भी क्या थी, इनफाइनाइट। ओके, अब क्या हुआ एट द बिग बैंग, आप देखोगे कि ये जो टाइनी बॉल है ये एक्सप्लोड हो गया, इट जस्ट एक्सप्लोडेड वेरी वेरी वायलेंटली, जिसके कारण बहुत ह्यूज एक्सपेंशन हो गया। और दिस इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट ये जो बिग बैंग पूरा है दिस एक्चुअली टुक प्लेस अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। इतने बिलियन ईयर्स अगो ये चीज हुई थी। क्या चीज, बिग बैंग जो हुआ था। ये एक्सपेंशन जो है इट स्टिल कंटिन्यूज इवन टिल द प्रेजेंट डे। बट जैसे जैसे ये ग्रो कर रहा था वैसे वैसे जो एनर्जी है इट स्टार्टेड चेंजिंग इनटू मैटर। वी नो दैट वाज अ स्मॉल एटम, बट व्हेन इट एक्सप्लोडेड तो बहुत एनर्जी थी। तो इनिशियली तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, वो जो एनर्जी है इट स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू मैटर। एंड हम अगर देखेंगे तो विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड जब ये बिग बैंग हुआ था वैसे ही रैपिड एक्सपेंशन शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे, यानी इनिशियली तो विद इन सेकेंड्स बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ रैपिड स्पीड पे, फिर धीरे धीरे वो स्लो डाउन होने लग गया। बट विद इन जो फर्स्ट 3 मिनट्स है बिग बैंग इवेंट के बाद, फर्स्ट एटम नाउ स्टार्टेड टू फॉर्म, यानी विद इन 3 minutes from the big bang event the first atom began to form। अब क्या हुआ, विद इन अराउंड 300,000 years, अब बिग बैंग के अराउंड 3 लाख ईयर्स या हम 300,000 years जो बोलते हैं, उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लग गया, ड्रॉप होने लग गया। ओके, द टेम्परेचर स्टार्टेड ड्रॉपिंग डाउन टू अराउंड 4500 केल्विन्स, जिसके कारण क्या हुआ, एटॉमिक मैटर्स फॉर्म होने लग गए। ठीक है, यानी एटम थे पहले, अब एटॉमिक मैटर फॉर्म होने लग गए। यूनिवर्स धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लग गया। ठीक है, और जो ये यूनिवर्स का एक्सपेंशन है ये अब कंटिन्यू हो रहा था। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब है कि गैलेक्सीज के बीच में क्या हुआ, स्पेस बढ़ने लग गई। ओके, और ऐसे ही ये एक्सपेंशन हो गया। ओके, दिस इज what is being told to us by few of the great scholars. You can even see the
picture that is given in your book on page number 15, if you see this picture you will notice कि हुआ क्या कि एक स्मॉल एटम था और उस स्मॉल एटम में से आप देखोगे कि एक्सपेंशन हुआ, बिग बैंग हुआ एंड बिग बैंग होने के बाद सॉरी उस स्मॉल एटम में बिग बैंग हुआ, एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोड होने के बाद वो एक्सपैंड होना शुरू हुआ और एक्सपैंड होता रहा वो एंड फाइनली ये एटम्स बने, एटॉमिक मैटर बने एंड एक्सपेंशन के कारण गैलेक्सीज के बीच में स्पेस जो है वो भी इंक्रीज हो। एक और कॉन्सेप्ट इस टाइम पे आया था एंड दिस वाज बेसिकली गिवन बाय हॉयल। इन्होंने बोला था, he basically talked about steady state, steady मतलब सेम रहना, है ना। ये क्या बोल रहे थे, he said that roughly अगर हम देखें तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो यूनिवर्स है वो सेम ही स्टेट में था। So he said कि universe was roughly at same at any point of time. But clearly बहुत ज्यादा clearly इस पे और evidences बहुत ज्यादा मिल नहीं पाए क्योंकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एविडेंस बिग बैंग के हैं और एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के हैं। इसीलिए साइंटिफिक जो ग्रुप है, साइंटिस्ट जो है, वो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को ही ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी मानते हैं। Okay, so this is basically the origin of universe. अब origin हो गया यूनिवर्स का। अब हम देखेंगे स्टार फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउ द अदर थिंग्स वर फॉर्म्ड एंड उसके बाद कैसे सैटेलाइट फॉर्म हुए, सोलर सिस्टम, पूरा एवोल्यूशन ऑफ अर्थ हुआ, फिर हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा हाइड्रोस्फेयर एंड फाइनली कैसे लाइफ है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोस्फेयर कैसे, ऑब्वियसली लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर आके देन वी हैड द होल अर्थ फॉर्मिंग द biosphere and जो present state of. Okay, so this is what we will be doing in our next class. Whatever we have done today, I suppose things are clear to you. If you have any doubt relating to whatever we have done, you can come back with your problem. Just give your book a reading. हमने around, we have done around 1.5 page, so just give this portion a reading and if you have any doubt, come back with your problems. We'll discuss and solve it. So this is it for today. Now we'll meet in the next class.